علم علی کو ملا. اون محمد سگے نواسے تھے. جعفر طیار دادا تھے, موتا میں ان کو علم ملا. کربلا میں واحد یہ بچے ہیں جن کے دادا بھی علمدار, جن کے نانا بھی علمدار. صرف حضرت زینب کے بچوں کو یہ فخر حاصل ہے جن کا دادا بھی علمدار, جن کا نانا بھی علمدار. حضرت زینب جان رہی تھی کہ بچوں کو اس پر ناز ہے کہ علمدار کے پوتے ہیں, علمدار کے نواسے. حسین نے سب سے پہلے حضرت زینب سے پوچھا, یہ علم جو تم نے سجایا ہے کس کو ملے؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ بابا کا قول تھا کہ یہ علم کربلا میں عباس کو ملے. جب حسین نے حضرت عباس کو علم عطا کیا تو یہ کہہ کر دیا, بہن کا عطیہ ہے عباس, زینب کا عطیہ. لیکن ابھی علم سجا تھا اور سارے بچے خاندان کے علم کے گرد آئے. حضرت زینب علم سجا رہی تھیں, علم سج گیا. اب حسین پوچھیں گے زینب یہ علم کسے ملے, کہ اس سے پہلے میر انیس کہتے ہیں کہ اون محمد زیر علم آ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت زینب نے بچوں کو دیکھا. پھر تم کو کیا اس سے کیا کام, کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے؟ سر کو ہٹو, بڑھو, نہ کھڑے ہو علم کے پاس. ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک ساتھ, ہوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس. بس قابل قبول نہیں تمہارے یہ التماس, رونے لگے ہو کہ تم جو برا یا بھلا کہوں, اس ضد کو بچپنے کے سوا کیا کہوں. ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم, قدوں میں سب سے, سینوں میں سب سے کم. یہ علم اس کو ملتا ہے جو قداور ہو, جو نمایاں ہو, جو ہم شکل علی ہو. اون محمد علم کا نام تمہاری زبان پہ نہیں, بس آخر میں جو بچوں نے کہا آیا ہے, اماں فوجی بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے, جب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں گے. یہ جو بچوں نے کہا ماں کا کلیجہ کٹ گیا, جگر سے ایک آہ نکلی اور ایک جملہ کہا کہ واہ بچوں, ماں کو اپنے موت کی خبر دیتے ہو. کہیں ایسا بھی زمانے میں ہوتا ہے کہ بچے اپنی موت کی خبر ماں کو سنا. ہاں اون محمد, میں مدینے سے تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لائی تھی اور تمہارے باپ نے یہ کہہ کر حوالے کیا تھا, تمہارے باپ کا قول تھا کہ یہ امام کے نواسے نہیں جا رہے. شہزادی یہ غلام زادے ہیں, میں حسین کا ادنا غلام ہوں اور یہ میرے بیٹے ہیں, میں حسین کی غلامی میں انہیں دیتا. اور پھر ایک بات اور کہی تھی عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہ ان کو اس لیے لے جائیے کہ اگر کوئی بلا اور مصیبت آئے تو انہیں حسین کا صدقہ بنا دیجیے. علم لے کر عباس برآمد ہوئے, پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر, اس کی زیاتی خاک پہ زو اس کی عرش پر ذرے زیے علم پہ ٹھہرتی نہ تھی نظر. دولہا کا رخ تھا سونے کے صحرے میں جلوہ گر, تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے,
उलझे हुए थे तार खुतूते शुआ, और वो सिपाही हुसैन के, जिसके अलमदार अब्बास सामंत बुर्दबार फलक मर्तबत दिलेर आली मरी सबा में सुलेमा वगा में शेर गुर्दाने दहर उनकी जबरदस्तियों से शेर फाके से 3 दिन के मगर जिंदगी से शेर। दुनिया को ही जो पूछ शराबा समझते थे, दरिया दिली से बहर को कतरा समझते थे। अल्लाह ने दिल उनके वफा से बनाए थे, और जिसमें पाक खाके शिफा से बनाए थे, और लिख गया था अजल से ये सर नविश्त में पहुंचेंगे ये हुसैन से पहले बेहिश्त में, पहुंचेंगे ये हुसैन से पहले बेहिश्त में। हर एक सबकत करना चाहता, और जिसका लाशा आता हजरत ज़ैनब फिजा किसका लाशा आया, फिजा दर खैमा से पुकारती अब हबीब का लाशा आया, जोहर का लाशा आया, अरे बहूर जो मेहमान हुआ था उसका लाशा आया। और फिर हजरत ज़ैनब ने देखा कि मुस्लिम के लाल रुकैया बीबी से रुखसत होकर चले, जो बेमिसाल थे रुए जमीन पर, फकरे यूसुफ थे। दोनों भाई साथ लड़े, और दोनों के जब लाशें आए तो ये भी अली के नवासे थे, रुकैया बीबी अली की बेटी हैं, ये अकील के पोते थे और अली के नवासे थे। दरे खैमा से मातम शुरू हो गया। तिफलान मुस्लिम का जैसे ही हम लोग हजरत मुस्लिम के बच्चों के रोजे में दाखिल हुए, नहीं बता सकते दिल का क्या आलम होता है। मुसैयब वो मकाम है जहाँ दोनों शाहजादों की कब्रें बनी हैं, बराबर बराबर 2 जरिए लगी हैं, पहलू में एक भाई आराम करता है, जरी के सामने ही मिंबर रखा था। जिले रजा साहब ने कहा कुछ 2 लफ्ज़ पढ़ दीजिए। क्या पढ़ते पिसराने मुस्लिम पर जो उस वक्त जहन में आया पढ़ दिया। नौहा खानी हुई, मजलिस मौजूद है। उस रोज़े की पहली बार जब गया था, जब भी मजलिस पढ़कर ही रोज़े में अंदर गया था, इत्तेफाक से उस दिन खुद्दाम ने जरी के दरवाजे खोले हुए थे। जैसे ही करीब पहुंचे उसने हाथ पकड़ के अंदर बुला लिया। नन्हे नन्हे ताबूत नजर आए। गंजे शहीदा में औन मोहम्मद हैं। आज हम उनकी जरियां ढूंढना चाहें तो हमको नहीं मिलती। बस हुसैन के पहलू में है ज़ैनब के लाल। क्या खूबसूरत 2 नवे नजमा फिंदी ने कहे, ज़ैनब के दुलारे हैं ये ज़ैनब के दुलारे, गेसू सी बीबी के हाथों के सवारे हैं ज़ैनब के दुलारे, ज़ैनब के दुलारे हैं। इन नौहों से मुतासिर होकर 1980 में हमने भी एक नौहा अंजुमन गमखारा ने अब्बास के साहिब बयास की फरमाइश पे लिखा, ऐ दिल बराने जाफर तैयार अलविदा। इस नौहे के चंद शेर जिल्दे रज़ा साहब से सुन के औन मोहम्मद का मातम करके अपनी शहजादी ज़ैनब को पुस्सा दे के फिर जाइए। नकी साहब भी नौहा पेश करेंगे, अंजुमन अल-जुल्फ़िकार भी मातम करेगी। अब देखिए 4 तारीख है, कल हजरत अली अकबर का ताबूत है। अब आपको मातम से फुर्सत नहीं होगी। 4-5 दिन की बात है। पूरे साल आप इंतजार करते हैं हुसैन आए, मेहमान हो हमारे यहां, और हम दिल भर के मातम कर। यकीन करें, जब हम आपको मातम करते देखते हैं तो हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि आज करबला के जवानों पे रोने वाले इतने हैं। कल अली अकबर तन्हा थे और मोहम्मद से 2 भाई थे, कोई मददगार।
कासिम अकेले थे। 9-10 बरस के सिन, जब मुस्लिम के बच्चों के लाशें आए तो कहा, ओनो मोहम्मद क्या चाहते हो कि जब अली अकबर का भी लाशा आ जाएगा तो जाओगे मैदान जंग? सुबह से मैं इंतजार में हूं, अब तक तुम्हारा नाम नहीं आया। माँ के कदमों पे बच्चे गिर पड़े। कहा, माँ हम तो सुबह से बार बार मामू जान के हाथ जोड़ते हैं, पैरों पे गिरते हैं, हमें जाने दीजिए। वो रोक लेते हैं, तुम मेरी बहन की आज्ञा जाने नहीं देते। जाने नहीं देते। कहा, फिजा जरा भाई को बुला। फिजा उधर हुसैन को बुलाने गई है और हजरत ज़ैनब ने दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के अपनी पुश्त की तरफ कर लिया और बच्चों को पीछे छुपाकर खड़ी हो गई। हुसैन आए, जैसे ही आए एक बार दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के सामने लाई और एक बार हुसैन के गिर्द बच्चों को लेकर फिरना शुरू किया। 7 बार ओनो मोहम्मद को भाई का तवाफ करा के कहा, भैया आज तो बला और मुसीबत का दिन है। मैंने नाना से सुना था, कहते थे कि जब कोई बला और मुसीबत बड़ी आए तो ज़ैनब सदके से बला टाली जाती है। मेरे भाई आप पर मुसीबत है, मैं काहे का सदका निकालूं? अरे यानो मोहम्मद, मैंने आप पर से सदके कर दिया, इनको मैदान जंग में जाने दीजिए, इन्हें रुखसत कीजिए। अभी रुखसत आप सुनेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा, जिले रजा पढ़ेंगे कैसे बीबियों ने ओनो मोहम्मद को रुखसत किया। लेकिन जब खैमे का पर्दा हटा, 2 चांद बाहर आए। एक को घोड़े पर अली अकबर ने सवार किया, एक को अब्बास ने सवार किया। अली अकबर ने भाइयों को प्यार किया, अब्बास ने भांजों को गले से लगा के प्यार किया और हुसैन बस आंसू बहते जाते थे, कहते थे, मेरे बच्चों, मेरे प्यासे बच्चों, अलविदा। कभी ज़ैनब को देखते, कभी बच्चों का चेहरा देखते, अलविदा अलविदा। लड़े ओनो मोहम्मद ने जंग की, ऐसी जंग कि लड़ते लड़ते पिसरे साथ के खैमे तक पहुंचे। उसके खैमे पर वार किया, उसे ललकारा, लेकिन एक तरफ से भाई भाई से कहता था, भैया उधर न जाना। छोटा बड़े से कहता था, बड़ा छोटे से, उधर न जाना, अम्मा ने मना किया है, फुरात पे नजर न पड़े, पानी पर निगाह न पड़े, सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, ओनो मोहम्मद पानी की तरफ न देखना। मैं खुद यहां पर आपके साथ मातम करूंगा, मैं खुद मातम करूंगा। ओनो मोहम्मद का मातम करने के बाद मैं डिग रोड जाऊंगा और कल से मैं आपके साथ मातम में रहूंगा। अब ये मातम के दिन है 6, 7, 8 अब्बास का मातम और शबे आशूर। अगर थकावट महसूस हो तो दिल में अली को पुकारिएगा कि वो हिम्मत दें और आप मातम कर सकें दिल भर के। मेरे बच्चे, मेरे जवान, सफ़े बना लें और पुरसा दें, दोनों हाथों से मातम करें। दोनों बच्चे गए, खूब जंग तय। फिर यही हुआ कि चारों तरफ से नेज़े वाले, भाले वाले घेर लें और भालों से गिराएं। इनको नेज़ों से गिराओ वरना ये पूरे लश्कर का सुथराव कर दें। ये बढ़ते जाते हैं, ये कत्ले आम करते जाते हैं, लाशों पे लाशें गिराते हैं, पुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं, लाशें मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये अली के नवासे हैं, इनकी रग रग में शजात दौड़ रही है। ऐसा लगता था फातेह खैबर की बेटी का जज्बे जंग
और मोहम्मद में समा गया है। ज़ैनब लड़ाई इसलिए देख रही थी कि मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, औरत पर से जिहाद साकित है, लेकिन बच्चों को दूल्हा सा बनाकर भेजा था कि बच्चे दिल भर कर लड़ें और हुसैन की नुसरत करें। कुछ देर के बाद फिजा की आवाज आई, बीबियों सब मिलके मेरी फूजादी को संभालो, रोती हैं कहां, बानुए आलम को बुला लो। घर लुट गया, काके आजा बालों पे डालो। खैमे में आते हैं लाशें, पर्दा उठा, लाशें आए। बस अब ज्यादा नहीं पढ़ने की हिम्मत, चंद जुमले हैं, यही ताज़ियत है। तमाम बीबियां लाशों के गिर्द आके जमा हो गई और हर एक का यही ख्याल था कि लाशें जो जमीन में रखे हैं, जब ज़ैनब आएंगी तो अपने आप को लाशों पे गिरा देंगी, अपने रुखसार बच्चों के सीने पे रख देंगी। लेकिन जब ज़ैनब आई तो तमाम बीबियों ने देखा ज़ैनब ने लाशों पे नजर नहीं की, बल्कि अपने सर की चादर उतारी और उतार के बिछाई और एक बार सजदे में झुकी का परवरदिगार तेरा शुक्र है, मैं सजदे शुक्राना करती हूं कि तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। है कोई माँ दुनिया में ऐसी जो बच्चों के लाशों पर सजदा शुक्राना करे? लेकिन जब सजदा कर चुकी तो जनाब उम्मे लैला और उम्मे रबाब ने हजरत ज़ैनब के दोनों बाजू संभाले और कहा, आओ ज़ैनब, बच्चों के लाशें जा रहे हैं, अपने दूल्हा रुखसत करो। तो अब जो लाशें पर आई तो बैन नहीं किए, पर दो जुमले कहे और वो ये कहे, वाह बच्चों, मैं समझती थी तुम दोनों मिलकर माँ का जनाजा उठाओगे। अरे क्या माँ बच्चों के लाशें उठा